Yes, you read it correctly. If you are watching this video, then there is more than 90% chance that you won't be getting selected in NEET. But what is the major reason? क्या और reasons हैं? And is there still a way to increase your probability of getting selected in NEET? We are gonna discuss it in this video. और मैंने काफी research की है from different sources, and I hope it helps. Stay tuned. And last में एक बहुत अलग factor आएगा. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Anand Pratap Singh, a second year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Aligarh. I cracked JEE Advanced and NEET with an All India rank 155 in NEET UG 2023. And in this video, we are going to discuss कि क्या वो reason हो सकते हैं that you might not be getting selected in NEET. So you might be thinking कि मुझे motivation आया कहाँ से वीडियो बनाने का. Actually, I received a message from a student. वो message personally triggered me a lot. In that message, he meant कि उसने 9th फेल हुई थी उसकी, cause उसको साइंस समझ नहीं आती थी. 10th भी उसने पैसे देके पास की थी, and 11th उसको किसी स्कूल ने पीसीबी लेने नहीं दी, and 12th में अब वो ओपन से पीसीबी लेके चाहता है नीट क्रैक करना. And he said, please help me. I just said one thing: don't go for NEET. नीट मत करो. नीट इज नॉट मेंट फॉर यू. नॉट एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर यू. ओके, काफी सारे फील्ड हैं जहां पे आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है. एंड प्लीज अपना यूथ, अपना इतने टीनेज इंपॉर्टेंट साल इस रेट रेस में, इस भेड़ चाल में मत बर्बाद करो कि हर कोई बस नीट 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 इज नॉट द ओनली टारगेट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एंड आई देन लेटर रियलाइज कि ही वाज नॉट द ओनली वन. और काफी सारे लोग हैं जिनको नीट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, एंड दे नेवर रियलाइज कि वो कितना पीछे हैं और उन्हें कितना ज्यादा मेहनत करके, वो भी इतनी मेहनत के बाद भी देयर इज नेवर फुल पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोना क्रैक इट. ओके, सो आपकी जर्नी का फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू स्टडी. एंड आप यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे नीट मोटिवेशन, यू आर गोना गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस. And I personally feel most of them are just there to distract you. वो आपसे views ले रहे हैं cause you are at a vulnerable stage. मैं भी views के लिए बना रहा हूँ वीडियो, but still they are just gonna give you fake hopes. आप ध्यान दें, fake hopes कि 2 महीने में नीट निकालो, 3 महीने में नीट निकालो, 11-12 बर्बाद है, फिर भी you can crack it at the first try. But पर्सनली आई डोंट थिंक कि आपको वहां पे वेस्ट करना चाहिए, कॉज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम देयर. बाकी इफ यू नीड अ मोटिवेशन देन इट हैज टू बी इंट्रिंसिक, अंदर से आना चाहिए. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं कि यू आर सीइंग वीडियोस एंड ये इंट्रिंसिक आपको अंदर से आएगा, देन ओनली यू आर गोना क्रैक इट. सो 3 साल पहले व्हेन आई वाज इन 11th आई ऑर्डर्ड अ बुक फ्रॉम Amazon व्हिच वाज दिस वन, टॉपर स्टडी हैक. आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि टॉपर्स कैसे पढ़ते होंगे यार. व्हाट मेड देम क्रैक सच अ डिफिकल्ट एग्जाम. आई रेड दिस बुक अ बिट एंड many things I found a bit too ideal to follow. Many things were just repetitive, but some things were interesting. And in the first quotation of this book was that questions in competitive exams are not difficult, but they are just different. And you have to focus on this fact कि they are just different and you have to be the different one. So पहले थोड़ा आपको like boost कर देते हैं that why you can crack your NEET exam or any exam in such manner. Number 1, you have brain, you have potential. Obviously you can do it. Second thing, that you want to. आप में एक intrinsic motivation है to be a doctor, to be a helper. And then इसके बाद या फिर पैसा भी हो सकता है उसका motivation. But still these both of the things are not enough. Why you might not crack NEET exam if you come to that. तो number 1 बहुत common चीज, बहुत obvious is competition. 25 लाख की भीड़ में से मुश्किल से 25,000 are gonna get selected. You have to be the top 1% of the cream, and for that you have to not only just do hard work but smart work also. And with paper becoming easier and easier each year, the merit is going up and up. एक चीज I want to discuss here is this bell curve, cause like this is gonna be the basis of this whole video. Bell curve में क्या होता है that most of the students or most of the anything like कोई question हो, students हो, sports person हो, artist हो, कुछ भी हो, most of them 90% of them are in the center. थोड़ा सेंटर से अप या डाउन उस रेंज में, but they are in the middle. बहुत कम लोग होते हैं जो उस फील्ड में बिल्कुल लैग कर रहे होते हैं, बहुत कम होते हैं जो उस फील्ड में बहुत हाई होते हैं, बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं. We don't have to focus on the extremes. You are in the middle. आप ये कंसिडर करो you are average, और थोड़ा सा like be humble, consider yourself below average. Now you have to make the journey. The same thing applies for questions. नीट में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं. Most of them are okay, ठीक है, like with medium effort you can crack it. Some of them बहुत कम होते हैं जो बिल्कुल ही आसान होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं. खैर नीट में तो अब ऐसा कम होता जा रहा है, but still most of them are in the center, and again you have to focus on the center. So ये है कि why you might not, but still ये सब कवर करने के बाद भी why you will not. आप ऐसा क्या है जो आप लैग कर रहे हो, जो आप कर सकते हो खुद, but still you are not doing it, you will not crack the NEET exam. Number 1 thing is obviously you are wasting your time. आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, which means that you are not studying at this time. You might be wasting your time. हो सकता है कुछ और सर्च कर रहे हो, ये वीडियो दिख गई and you cracked, just clicked it. But प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, इट्स एन ऑब्वियस थिंग. सेकंड इज, आपने वो एक इमेज देखी होगी दैट देयर इज अ ट्री एंड एक आदमी कह रहा है मंकी से, एलिफेंट से और फिश से कि जस्ट क्लाइंब दिस ट्री.
व्हाट दिस इंप्लाइज कि स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी कि your talent doesn't matter, your expertise in any field doesn't matter if you are not a doctor, if you are not an engineer, if you are not in like the top tiers which they have selected कि यही professions होंगे तो पढ़े लिखे कहलाए जाओगे. And just don't fall for this trap if you are able to. बहुत pressurize हो रहा है आपको, and if you have to then still हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा आपको, अगर कोई भी अपने एक्सपर्टीज के बाहर वाले किसी फील्ड में जाना है. तीसरी चीज जो मुझे काफी एक अच्छी लगी इन दिस पूरी रिसर्च वाज अ डनिंग क्रूगर इफेक्ट. व्हाट इज दिस डनिंग क्रूगर इफेक्ट? दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बताया था लाइक एक आप किसी रैंडम एग्जाम दिलवाओ 100 स्टूडेंट से, एंड आप उनको एग्जाम के तुरंत बाद पूछो कि हाउ वाज द एग्जाम. सो एवरीवन इज गोना गिव देयर परसेप्शन कि कैसा गया उनका. सो बट जब रिजल्ट आया एंड दे कंपेयर्ड द लाइक द बॉटम 25% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टॉप 1-2% ऑफ द स्टूडेंट्स, दे फाउंड कि जो बिल्कुल बॉटम पार्ट था उन्होंने अपनी परसीव्ड परफॉर्मेंस उनको लगा था उन्होंने एवरेज किया है, बट एक्चुअल में उनका काफी वो लाइक वो बॉटम में आ रहे हैं, बिल्कुल बिलो एवरेज था. और जो बिल्कुल टॉप वाली परफॉर्मेंस थी उनको परसीव हुआ था कि उनका मतलब एवरेज से अच्छा गया बट टॉप नहीं करेंगे वो. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि उन लोगों ने टॉप किया. सो व्हाट दिस डनिंग क्रूगर इफेक्ट मींस कि नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर एवरेज और बिलो एवरेज. हर कोई अपने आप को एटलीस्ट एवरेज तो कंसिडर करता ही है. एंड जब आप पहले ही ये लाइक अनकॉन्शियस आपका इनकम्पिटेंस है तो यू आर बिहाइंड. जस्ट बी हम्बल, कंसिडर दैट यू आर लैकिंग अ लॉट एंड यू हैव टू मेक अ ह्यूज लीप. इसमें आई डू फाउंड अ नाइस थिंग विच इज लाइक 4 फैक्टर्स ऑफ लाइक योर कॉम्पिटेंस. फर्स्ट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, विच मीन्स कि आपको पता ही नहीं है आप उस चीज में इतने बेकार हो. यू जस्ट जम्प्ड इनटू थिंग्स एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर एसिंग इट और बहुत अच्छा कर रहे हो. सेकंड इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कि आपको समझ आ गया कि नहीं ये चीज मुझे नहीं आती, बट स्टिल यू आर गिविंग योर एफर्ट्स. आपको समझ आ गया ये चीज मेरे हाथ से बाहर है, बट स्टिल यू आर गिविंग योर एफर्ट्स. देन विद टाइम, विद एफर्ट्स, विद लाइक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू रीच टू द स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस. कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. कॉन्शियस कॉम्पिटेंस क्या है? दैट यू नो. अब आपको समझ आ गया कि हाँ नाउ यू आर टैलेंटेड इन दिस थिंग, यू आर नॉलेजेबल इन दिस फील्ड एंड आपको उसमें इंटरेस्ट भी आ गया है. द फाइनल स्टेज व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यू डोंट नो हाउ गुड यू आर. आप इतना ज्यादा उस चीज में लाइक आपको महारत हासिल हो गई है, बट यू नॉट आर रियलाइजिंग द फैक्ट कि आप उसमें इतना आगे हो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस टू द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये काफी अच्छा मुझे वो लगा. और हम कहीं ना कहीं हर कोई किसी ना किसी फील्ड में इन्हीं 4 स्टेप्स पे से होता है. जस्ट ट्राई. मैं एक ही चीज कहूंगा, बी इन द कॉन्शियस वन. नाउ कमिंग टू द मोस्ट अनोइंग पार्ट फॉर मी. हर कोई आके एक ही चीज पूछता रहता है, भैया व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, व्हाट वाज द परफेक्ट स्ट्रेटेजी, मैं क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाए. सो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लाइक मेरा पर्सनल फेवरेट है. इट इज रिलेटेड टू अ फिनोमेना कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस. So as the name suggests, survivorship bias. क्या हुआ था कि during World War II, when allies जो थे अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड फ्रांस, when they used to send their फाइटर प्लेन्स ओवर जर्मनी, जर्मनी ऑब्वियसली उन प्लेन्स को शूट करता था एंड वापस जो लौट के आते थे कई सारे, दे फाउंड कि उनमें जो बुलेट्स थी प्लेन्स में, वो एक तो विंग्स के एंड्स पे थी, प्लेन की बॉडी पे थी ज्यादातर बुलेट्स, एंड प्लेन की टेल विंग्स पे होती थी. सो व्हाट दे डिड, कॉज आप पूरे प्लेन में और मेटल नहीं लगा सकते, एक तो महंगा पड़ेगा, वॉर में वैसे पैसे कम पड़ रहे हैं आप पे, एंड देन वो फ्यूल ज्यादा खर्च करेगा, भारी हो जाएगा. तो व्हाट दे डिड वाज कि जहां पे उनको बुलेट के ज्यादा दिखते थे ना, यहाँ ज्यादा बुलेट्स हैं, they just plated that with another sheet of metal, and then a mathematician came and he said that you all are just idiots and you are wasting your money and efforts, cause वहां पे मेटल लगाओ जहां पे एक भी बुलेट नहीं है. You might be thinking कि ऐसा क्यों, वहां पे लगाए ना जहां पे बुलेट ज्यादा पड़ रही हैं. तो he said one thing कि जिन एरिया पे आपको एक भी बुलेट नहीं दिख रही, जब वहां पे बुलेट पड़ी थी वो प्लेन कभी लौट के आ ही नहीं पाया. Emphasize on the fact, जब उस एरिया पे बुलेट लगी थी तो वो प्लेन कभी लौट के आ ही नहीं पाया. जो भी प्लेन लौट के आ पाए वो थे जो सरवाइव कर गए. यानी यहां पे बुलेट जो पड़ी है वो तो सरवाइव कर पा रहा है, जो एक्चुअल जहां पे डेंजर इलाका है वहां की बुलेट तो आप देख ही नहीं रहे क्योंकि वो प्लेन लौट कर ही नहीं आ पा रहे. सो इसका लाइक कहां से व्हाट कुड बी मोटिवेशन फॉर यू इज डोंट गो बिहाइंड टॉपर्स और डोंट गो बिहाइंड सक्सेसफुल, या फिर जो उस फील्ड में सक्सेस मिल चुकी है उन्हें, कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी. जो स्ट्रेटजी उनके लिए काम कर गई, इट कुड नॉट बी लाइक कि वो ही आपके लिए ही हो. सो ये मैंने देखा है, हर कोई बस भीड़ चाल में अपने आप को नहीं आप ढूंढोगे. यू आर नॉट गोना फाइंड योर स्ट्रेटजी. यू आर जस्ट सी कि हाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया. जस्ट आस्क द फेलियर्स, जो एग्जाम में फेल हुए थे, आस्क देम कि आपकी गलती कहां रही थी. वही करो कि बुलेट जहां पड़ी, जहां वहां ध्यान दो जहां से बुलेट के लगने पे प्लेन ज्यादा क्रैश हुए, ना कि जो लौट के ज्यादा आए थे. डू दिस. आप फेलियर्स जो फेल हुए किसी भी फील्ड में, इन एनी फील्ड, कुछ भी हो, जस्ट आस्क द फेलियर व्हाई यू फेल्ड एंड यू आर गोना रियलाइज कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी.
लाइक इमेजिन नीट एक ओशन की तरह है, जिसमें ऑब्वियसली पानी में चलना जमीन पे चलने से मुश्किल होता है, एटलीस्ट फॉर ह्यूमंस, और आपको ये पार करना है ओशन। हर किसी की अलग स्ट्रेटेजी होगी इस पानी में तैरने की। वेल्स अपने पूंछ को ऐसे कर रही है, मानिए शार्क्स ऐसे ले जाती हैं, डॉल्फिन का क्या रहता है, सेल फिश एक अलग तरीके से जाती है, देन नॉर्मल फिशेस अलग तरीके से स्विम करती हैं, टर्टल बिल्कुल ही अलग तरीके से स्विम करता है। बट वन थिंग इज कॉमन, एवरीवन इज स्विमिंग, हर किसी को स्विम करना पड़ रहा है। बट अगर आप कहें टर्टल से कि तुम फिश की तरह स्विम करके जाओ, भाई मारोगे क्या उसको? सो एवरीवन ऑफ यू इज डिफरेंट, आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, डोंट फॉल फॉर द सेम स्ट्रेटेजी। नाउ लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं दैट हाउ माय थिंग्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं मेरी लाइक यू कैन चेक माय नोट्स की वीडियोस एंड इट इज वेरी ब्रॉड वन, कि उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हाउ माय नोट्स वर डिफरेंट। मैं काफी ज्यादा इमेजेस यूज करता था, ड्राइंग यूज करता था, काफी ज्यादा नॉलेज यूज करता था, बट वन थिंग वॉज कि मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी, तो इट वॉज इजी फॉर मी। एंड दूसरा मेरी फोटोजेनिक मेमोरी थी, मुझे पिक्टोरियल मेमोरी थी, मुझे जो देख लेता था वो याद होता था। बट काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और I meant कि हाँ, it could be time waste for you, but it was helpful for me. What could be helpful for you? It might be time waste for me. मैं कभी बुक से नहीं पढ़ता था, लाइक बुक पे इतना बुक को 10 बार मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। For me it was just text, it was nothing to visualize. But काफी लोग थे जो मुझसे भी अच्छी रैंक ले आए, जिन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए, कभी सिर्फ बुक्स करते रहे। So obviously I'm emphasizing on one thing कि don't think if you are not doing this one, इस एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे, then you are lacking. Just अपना टाइम वेस्ट मत करो on finding the perfect strategy. Try random things and you're gonna end up with a perfect one. So इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं विच इज लाइक बायोलॉजी से रिलेटेड, कि बैक्टीरिया अपना खाना कैसे ढूंढता है। बैक्टीरिया के पास आंखें तो है नहीं, कान है नहीं, देन हाउ डज इट फाइंड इट्स फूड? व्हाट डज बैक्टीरिया डू? दैट इट स्टम्बल अराउंड, वो रैंडम डायरेक्शंस में जाता है, जिस एक डायरेक्शन में उसको सेंस ज्यादा, लाइक केमिकल सेंस ज्यादा होता है फूड, वो उसकी तरफ जाता है, फिर वो वहां पे थोड़ा रैंडमली इधर उधर जाता है। उनमें से भी जो उसको थोड़ा सा ज्यादा लगता है, मेमोरी उसकी मेमोरी नहीं होती बट केमिकल इट इज, वो उधर जाता है। ऐसे ही बैक्टीरिया ट्राइज रैंडम थिंग एंड देन गोज टुवर्ड द बेटर वन। अगेन वहां पे रैंडम चीजें थोड़ी ट्राई करो, देन गोज टुवर्ड द बेटर वन। डू दिस विद एनीथिंग दैट यू आर डूइंग. Try to like explore different sides of anything and you eventually will end up with a thing which is perfect for you, which you suits with you, and आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but still you need a mentor कुछ guidance के लिए तो obviously. Second, एक टेक्निक है जो I used a lot, which is the Pomodoro technique. Pomodoro technique नाम तो अजीब सा है, but this is thing. If you are gonna see this graph, तो इसमें क्या है, like if you are studying 1.5 घंटा 90 minutes पढ़ रहे हो एक चीज को, then this graph is plotting the attention span of you. So starting में क्या होता है कि 100% attention होता है आपका जब आपने स्टार्ट करी होती है अपनी स्टडी, बट बाद में जाते जाते विद जैसे बीच का पार्ट आता है ना, बहुत बोरिंग हो जाती है पढ़ाई एंड आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। लास्ट में आता है जब ये होता है कि हाँ खत्म होने वाला है, तो आपको थोड़ा टेंशन रहता है। यही सेम चीज है रिमेंबर के साथ। आपने अगर एक लेक्चर देखा 1.5 घंटे का, तो आपको स्टार्टिंग का पार्ट याद रहता है, बेसिक लास्ट का याद रहता है, बीच वाला आप ब्लैंक हो जाते हो। सो उसको अंडू करने के लिए क्या कर सकते हो आप, दैट हर आधे घंटे में, हर 25 मिनट में, या फिर कुछ लोग 1 घंटा भी लेते हैं, बेस्ट वन इज हाफ आवर, हर हाफ आवर में आप थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो। लाइक 25 मिनट्स आपने पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया। आप देख सकते हो कि ये ग्राफ कभी ज्यादा नीचे ही नहीं आएगा, ये ग्राफ नीचे ही नहीं आएगा, और यही चीज होगी जो आपको हर समय आपका अटेंशन स्पैन 100% की तरफ ही रखेगी। अगर आप पूरा 1.5 घंटा लगातार पढ़ोगे, ऑल्दो अगेन द सेम थिंग, दिस वर्क्स फॉर सम, दिस डजंट वर्क फॉर सम। सो लाइक बट मैंने पर्सनली फील किया, मैंने जिसको भी बताया है उसको हेल्प हुई है कि फॉर द 90 मिनट्स जस्ट ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट, एंड इट विल हेल्प यू, इट विल कीप योर अटेंशन टू द हाईएस्ट पॉइंट। देन एक और टेक्निक जो मैं कहूंगा आप लैक कर रहे होगे डेफिनेटली, इट इज मल्टीपल रिविजन। जितना रिवीजन हो सके करो। हाउ बट कैसे, मतलब ऑब्वियसली हर समय तो आप रिवाइज कर नहीं सकते। दिस इज अनदर ग्राफ विच आई सॉ समवेयर कि व्हेन यू फर्स्ट लर्न समथिंग, योर रिमेम्बरेंस इज एट 100%, आपको 100% याद रहता है उस टाइम, बट विथ सेकेंड डे ही, एक दिन के बाद आपका आधे से भी कम याद रहता है, फिर अगले दिन और कम हो जाता है, अगले दिन और कम हो जाता है, ये ग्राफ नीचे ही गिरता जाता है। बट अगर आप एक चीज करो, रिपीटेटिव रिविजन्स, लाइक आपने सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है उसी दिन और अगले दिन। तो मानिए आपने ग्राफ आपका गिर रहा है एंड आपने विद इन 24 आवर्स आपने रिवाइज कर लिया, ग्राफ ऊपर होगा। एक चीज नोटिस कीजिए, अब ग्राफ धीरे गिरेगा, लाइक उसका जो रिग्रेशन होगा ग्राफ का वो धीरे होता है, अब आपको अगले दिन में उतना नहीं भूलोगे जितना फर्स्ट 24 आवर्स में भूलोगे। आप अगेन उसको रिवाइज करो, अब और धीरे गिरेगा। तो आपको क्या है, रिवीजन्स ये नहीं कि हर दिन करना है उस चीज का, आपने उस दिन रिवाइज किया, अगले दिन रिवाइज किया, उसके अगले दिन किया, फिर 1 हफ्ते बाद किया, 1 महीने बाद किया, ये चीज परमानेंट हो जाएगी आपकी मेमोरी में। ये ग्राफ ऐसे ही होता है और फिर लास्ट में जाके वो चीज आपको इतनी अच्छी याद हो जाएगी कि आपका नीट तक आपको याद रहेगी और एंड मोमेंट पे आपको रिवाइज करने की कोई नीड नहीं होगी।
एक और चीज इंटरेस्टिंग इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्लीज मुश्किल क्वेश्चन पे मत जाओ। एज आई टोल्ड यू, जैसे बेल कर्व में जो डिफिकल्ट वाले पोर्शन है बहुत डिफिकल्ट, उस पर मत जाओ। बीच वाले एवरेज और बहुत इजी पे फोकस करो, बिकॉज वो है जहां पे यू आर गोना गिव योर 100%। लाइक इफ द मोर एफर्ट्स यू गिव, द बेटर मार्क्स यू आर गोना गेट। एंड इन द डिफिकल्ट वन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड देन आपको जाके 2-3 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। एंड इन योर एग्जाम ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Now coming to the final part of the video, which I personally believe is extremely important, but not much people give it emphasis over it. And the main reason is because it is sort of an untouched rock and a taboo key. It is not in our hand, we cannot do much. Then why discuss about it? It is luck. Luck, yes, you heard it right. Luck is extremely important in any field that you're going to do. And I personally believe, and not only me, but many researchers also have given the same reports, that luck is responsible for most of your success. You might be thinking, how is this possible? You have always heard कि like कोशिश करने वाले की हार नहीं होती and all. But luck is बहुत ज़्यादा important thing है, and I cannot emphasize more on this fact. Coming to what the researchers do, whoever did the studies over this, and काफी अच्छा था, and they divided luck into 4 parts. Number 1 is just your dumb luck. Dumb luck क्या होता है? You bought a ticket, lottery ticket, and you won the lottery. आपको कोई स्किल जरूरी नहीं थी, कोई एक्सपर्टीज नहीं, कुछ नहीं. इट वॉज जस्ट अ रैंडम थिंग. आपने लॉटरी टिकट खरीदी और आपको मिल गई. It is dumb luck. Don't rely over this much. Second is active luck. Active luck में क्या होता है? That you try different things. You meet different people. You make connections with them. वहां पे जाके कोई एक ऐसी कड़ी आती है that you find कि हाँ, this is the person who's gonna lift you up, or this is the field which you feel कि हाँ, just because like you are trying 1,000 things and उसमें आपने फील किया कि यार मैं इस स्पोर्ट में काफी अच्छा हूँ. It happened just because you were trying different things. You were making connections with people. This is active luck, just like the bacteria. वो हर जगह stumble upon करता है, and then जिस डायरेक्शन में फूड ज्यादा होता है goes toward that. It is active luck. Third type of luck is what happened with Alexander Fleming. You all know the story कि in the petri dish he found कि जहाँ पे fungus था, वो specific fungus around that no bacteria was able to grow, and then later he found that fungus was making something which was killing the bacteria. But why was he able to do this? Because many years ago, I guess 9 years back, he also found a similar experiment with sputum. Sputum के साथ भी यही हुआ था, that no bacteria was growing around the sputum, and then he later found that it was lysozyme and all. But what happened that he saw 2 random dots which happened to him due to luck. Lucky था, but he was able to connect both the dots because he had the deep ingrained knowledge of the field. So NEET में active luck and this third type of Fleming वाला luck is extremely important. Fourth type of luck is something which happened with Charles Darwin. इसमें क्या होता है that you just pick a random field, a random unexplored path, and give your best to explore that path. He did the same thing. He at that time इतना हर कोई like हर species को बुक में नहीं लिखते आते थे, and were not doing that much, and he went to the Galapagos Island to just explore the species, and there he found the evidence for evolution. So what fourth type of luck is just that you try one unexplored path and just keep on going on that, and eventually you will find something जो किसी और को नहीं मिली होगी. But the crux of this whole discussion was that you have to focus on the active luck and the third type of Fleming वाला luck. एक और लाइक एक्सपेरिमेंट जो करा था कंप्यूटर्स ने, इट इज नॉट अ रियल वन, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम रन किया गया था. इट इज वॉज की अराउंड आई गेस देवर आई सॉ वीडियो मेनी इयर्स बैक एंड आई कुडंट फाइंड इट अगेन. देवर 1000 एप्लीकेंट्स फॉर 10 पोस्ट. वो पोस्ट थी लाइक एस्ट्रोनॉट की, एंड आउट ऑफ द 1000 द कंप्यूटर हैज टू पिक 10. व्हाट द पैरामीटर वाज सेड दैट 95% ऑफ द पार्ट वुड बी योर टैलेंट बेस्ड. 95% जो रैंकिंग थी, लाइक नंबर्स वर गिवन रैंडमली नंबर्स दिए जा रहे थे लोगों को. 95% जो था वो टैलेंट था, एंड जस्ट 5% लक. 5% लक वाला पार्ट, 95% टैलेंट. एंड व्हाट दे फाउंड वाज जो टॉप 10 आए, टॉप 10 में 8 people out of the top 10 were there because their luck was compensating their lack of talent. I am again saying वो टैलेंट में कम नहीं थे, बट देयर वर ऑल्सो अदर पीपल हु वर फार बेटर इन टैलेंट इन देम, जिनके पास स्किल्स और ज्यादा थी. लाइक अगेन आई एम सेइंग इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम. मेरे पीछे मत आ जाना कि वेयर एंड यू माइट फाइंड अ वीडियो ऑन चैट टेडेड या मिनट अर्थ की थी, मिनट 60 आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. बट द थिंग वाज कि 10 में से 8 लोग वर देयर बिकॉज दे वर लकी इनफ, ऑल्दो दे वर टैलेंटेड, बट बिकॉज दे आर लकी इनफ. So this is one thing which I really focus on, that luck is extremely important, and you cannot do much. But I again said, in active luck and in third type of luck, you just have to explore and have a keen interest in just finding, just connecting your dots. Now coming to the summary part of this video,
what I meant to say was that there are many things in your hand which you have to give your 100% over there. There are many things which are not at all in your hands, and initially you might feel, but eventually you'll find out कि उसमें भी आप अपनी probability increase कर सकते थे if you give your best. And even if you give your best every time, there's still a chance that you might not getting success. And ये part है जहाँ पे luck बहुत important part play करता है in each and everyone's life. Like आप सर्च करो इसके बारे में अबाउट दिस लक वाला पार्ट एंड हाउ लक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन सक्सेस. अपने आप को डिमीन मत करो दैट इफ यू आर नॉट एबल टू सक्सीड दैट डजंट मीन कि आपने मेहनत करी नहीं. यू गिव योर बेस्ट, दैट इज द पॉइंट. एंड इससे भी ज्यादा which I want to focus on the fact which I made this video for was don't waste your youth, please. Don't waste your youth, don't waste your resources, don't waste your time. Not everything is meant for everyone. Okay, it might be like hard to acknowledge the fact that हम नीट के लिए नहीं बने, नीट is not for us. There are many things I consider मैं नहीं कर सकता. I can like economics आती है, मुझे बिल्कुल blank हो जाता हूँ बहुत बार. Okay, I had an interest in history, geography में बहुत interest था, civics में था, economics के आती है I was just like even 10th maybe I hated that subject. So there will be things which are not meant for you, but there are definitely things which are meant for you, and just go on them, go towards them. अपने इंटरेस्ट का करो, इंटरेस्ट करो. एंड अगर आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है किसी चीज में, स्टिल आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, देन यू हैव टू जस्ट चेंज योर पाथ. वी कांट डू एनीथिंग एल्स इन दैट. 25 लाख की भीड़ में से 1% सिलेक्ट होने वाले हैं. Okay, could be क्या चांसेस हैं that you are not over in that 1%. Acknowledge the fact and do something else. एंड आपको आए दिन मोटिवेशन स्टोरी मिलती होंगी कि लाइक ऑटो वाले के बेटे ने ये किया वो किया, किसी ने 6 अटेम्प्ट में नीट निकाला, 10 अटेम्प्ट में नीट निकाला. ओके, वी फाइंड दैट बहुत अच्छा लगता है देखने में कि ओके यार इट इज दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं. बट द थिंग इज कि अगर एक बंदा लाइक लेट्स से 10 लोग 100 लोग हैं जिन्होंने 11-12 अच्छे से करी है, फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं, अच्छे से करा है पढ़ाई, 100 में से आई गेस 20 का सिलेक्शन हो जाएगा. अदरवाइज अगर वही सेम पैरामीटर्स आप एक और लाइक बिल्कुल उस पर डाल दें जिसने पढ़ाई ही नहीं, 11-12 है, 9th एंड देन 5-6 ड्रॉप लिए, उसका भी सिलेक्शन होगा 1000 में से 1 का. यू आर सीइंग द नंबर्स, यू आर सीइंग द रेशियो. कहां 5 में से 1 का सिलेक्शन हो रहा है, इट इज जस्ट मेड अप नंबर, एंड कहां 1000 में से 1 का सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है. द थिंग इज डोंट फॉल फॉर सच मोटिवेशंस कि उसने ये किया, उसने ये किया. नो, प्लीज डोंट डू दिस. Don't do this. अपना देखो that where you are lacking, what your expertise is. Again, that imagine that image कि वो बंदर है, मतलब पेड़ है और बंदर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिश भी एंड एलिफेंट भी, एवरीवन. You can't be doing that. आपका कुछ और फील्ड होगा, गो इन दैम. प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो कि उसने 5 अटेम्प्ट्स में निकाला, हम भी निकाल सकते हैं. निकाल सकते हो, बट योर प्रोबेबिलिटी विल गो डाउन एंड डाउन विद ईच अटेम्प्ट, विद ईच पासिंग ईयर बाय. आपकी प्रोबेबिलिटी डाउन जाती जाएगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद भी सक्सेस 100% नहीं है. इवन इफ अगर आप ये मान लो कि मैं अपने 5 साल बर्बाद कर भी लूं, बस मुझे ये अफसोस ना रहे कि आई नेवर गिव माई बेस्ट, गो फॉर इट, डू समथिंग. आज में आपको रिग्रेट ना रहे. Again, the final words for me, from my side to you is don't waste your resources, don't waste your time. You have very limited time over there. खासकर ये youth का time, go and invest over something else. एक उसी बुक से I found a quote दलाई लामा का which I felt was very interesting. It was, when you lose, don't lose the lesson. I would like to wind up this whole video on this quote. When you lose, don't lose the lesson. And कुछ तो सीखने को मिलेगा. With every failure there comes a lesson, and you have to just acknowledge that you might not be suited for everything, just okay, but find that thing which you are suited for. With this, जो भी डाउट हो just put it in the comment section and I will be replying you, or I am thinking of making a Q&A video. Just give me some questions which you might feel I have to elaborate. So till then, see you in the next one. I hope कुछ तो आपको एक्स्ट्रा लगा होगा इस वाली में. See you in the next one. Till then, bye.